Worksheet question number 19. The diagram shows a parallelogram with vertices A, B, C, and D. Find the coordinates of D. So all you have to do is use vectors concept. So to go from B to C, we're going 2 units to the left because 8 is changing into 6. So 2 units हो गया right, left. 8 units. और फिर हाँ 1 से 9 के लिए 8 units और. So 2 left, 8 up. Miss, minus 4 and 9. Sorry? I have a question, Miss. बोलो. Miss, I tried to solve this using vectors, but the parallelogram की sides tilted होती हैं. So, मतलब, how can we effectively sort of just visually take out the coordinates? Parallel sides तो equal होती है. Parallel sides की movement same होती है because they're parallel. If you have any two parallel and equal sides, they'll have exactly the same movements. As long as they're parallel and equal. जितना एक लेफ्ट जा रहा है उतना दूसरा भी लेफ्ट जाएगा और जितना एक अप जा रहा है उतना दूसरा भी अप जाएगा. ठीक है. So we have to move -2, which is the x of A, 2 units to the left. So -2 would be -4. And then 1 has to go how many units up? 8 units 9. up. So 9. So 1, 9 would be the coordinates of D. यही answer है. 1, 9. Let me quickly check the answers from the end of the worksheet. Miss -4 9 नहीं होना चाहिए. हाँ 1 मैंने क्यों लिख दिया? Yes, -4. -4, okay. So that's D. एक second check भी कर लो. D is -4, 9. All right. Next is point E lies on the diagonal DB. Okay, so E lies on the diagonal DB such that DE is 1/4 of DB. DE is 1/4 of DB. That means this has 1 part and this would have 3 parts. Because DE is 1/4 of DB, meaning that DE upon DB will be 1/4. So DE has 1 part और पूरा D से लेकर B तक has 4 parts. ठीक है. The yellow part. पहले मैं सोच रहा था कि इसका डिस्टेंस लेंगे लेकिन ई का सिर्फ कोऑर्डिनेट्स आ ही नहीं रहे थे इस तरह. अच्छा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ E का है ना, तो हम करके देख लेते हैं. D से B तक जरा मूवमेंट लेके देखते हैं from D to B. So how many units are we going right to go from D to B? -4 till 8. How many units is that? 12. 12 units to the right. And how many units down are we going? We're going from 9 till 1. So how many units is 8 that? units now. 8 units. ठीक है. अच्छा, अब इसका 1/4 ले लेते हैं. Because DE is 1/4 of DB. So DE की movement इस movement के 1/4 होगी. बस हम लोग पहले साइक्लिस्ट यूज करके पूरे डायगोनल की लेंथ ना ढूंढेंगे. नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं हमने यूज करना क्योंकि हमें ना E के कोऑर्डिनेट्स चाहिए. हमें DE का डिस्टेंस नहीं चाहिए. अगर डिस्टेंस चाहिए होता ना, just the distance DE, then you were right. You would find the distance of DB first and then you will quarter it. You multiply it with 1/4. But you need the coordinates of E. Coordinates आएंगे movement से. और आप 2 आ रहे. Sorry, 3,2. 3 और 2. नहीं, -1,7 लिखा हुआ है. नहीं मिस, ये आपने कहा ना 12 और 8 को 1/4, तो इसका मैं कह रहा था. हाँ, let's do that. 12 right और 8 down would be 12 और -8 अगर हम कह लें क्योंकि डाउनवर्ड मूव में -8 होती है. एनीवे उसका 1/4 करते हैं. So that would be 3 units to the right
and 2 units down. Yes. So now let's take -4, 9, 3 units to the right. क्या बन जाएगा? +3 करेंगे, राइट जाएगा तो क्या बने? This -1 और 12. और 8 डाउन, नहीं 8 डाउन नहीं, आई एम सॉरी, 2 डाउन है. इसकी मैट्रिक्स कहाँ से बनी? मुझे मुझे नहीं ये बात समझ आ रही। मैट्रिक्स तो नहीं हम कर रहे, मैं तो मूवमेंट यूज कर रही हूँ. मूवमेंट को आई एम जस्ट राइटिंग इट मींस बट डाउन. आपने कॉलम अच्छा आपने वेक्टर वर्टिकल लिख रहे हैं. 8 12 राइट गया और 8 डाउन गया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में हम उसको कैसे लिखते हैं? 12 एंड -8 इनसाइड अ वेक्टर. फिर उसको मैंने 1/4 किया है, सो दैट बिकम्स 3 -2. The movement was 12 right and 8 down, and 1/4 of that is 3 right and 2 down. So मुझे बताओ 9 2 down होके क्या बन जाएगा? 7 7. So 7. -1, 7 are the coordinates of E. -1, 7. ये E के coordinates are. ठीक है? Using movement, finding movement between DB first and then multiplying it with 1/4. So that gives the coordinate of E. Next is the point F is such that EF is parallel to AB. अच्छा, अब अगर EF और AB parallel हैं, तो उससे हमें F का एक कोऑर्डिनेट पता चल रहा है. कौन सा कोऑर्डिनेट पता चल रहा है? If AB and EF are parallel. देखो अगर ये पैरेलल हैं तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल वैसे लाइंस. कि ग्रेडियंट सेम होंगे। ग्रेडियंट सेम होगा, ठीक है, ए बी और ई एफ का. बट इधर y की वैल्यू क्या है? 7. तो इधर भी y की वैल्यू 7, बिकॉज दीज आर बोथ हॉरिजॉन्टल. जी ठीक है, ए भी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ए की भी हाइट 1 है, मतलब y कोऑर्डिनेट, और b का भी y कोऑर्डिनेट. So it's in exactly a horizontal line. That means EF is also a horizontal line. That means y of f is also going to be 7. Okay, now we need the x of f. बस अब कोई इक्वेशन पहले. हाँ, अब ये क्या बताया हुआ है कि the area of trapezium AEFB is 1.5 times area of ABCD. Okay, तो पहले तो area of ABCD की बात करते हैं. ABCD is a parallelogram. What is the formula for area of a parallelogram? मिस इट्स 1 हाफ over 2 और वो. sum of the parallel sides into height। नहीं, वो तो ट्रेपीजियम होता. नहीं, मैं मुझे इसका उस तरह नहीं करना, हाफ और फिर वो पॉइंट्स को ऊपर नीचे लिख के -4 9. नहीं नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है. ओ लेवल्स में मिस तब लेंथ भी बचती है। बेस इनटू हाइट होता है फॉर्मूला. बेस पता होनी चाहिए और वर्टिकल हाइट पता होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल ये अगर एक पैरेललोग्राम है और उसकी बेस लेट्स से 3 यूनिट्स है, और ये जो वर्टिकल हाइट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेट्स से ये 6 है, तो एरिया विल बी 6 times 3, बेस टाइम्स हाइट. तो अभी जो गिवन पैरेललोग्राम है इसकी बेस बताओ. व्हाट इज द बेस ऑफ दिस पैरेललोग्राम? तो हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे ए और बी का. हाँ, डिस्टेंस नहीं लो, उसके एक्स के कोऑर्डिनेट्स देख लो, उससे ही पता चल जाएगा. डिस्टेंस से भी वही होगा, लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, बस दोनों के मिस एक्स का 10. डिस्टेंस 10. The base of the parallelogram is 10. And what's the height of the parallelogram? From मिस 8. here to here. 1 से लेकर 9 तक 8. Correct. So the area of the parallelogram is 8 times 10, 80. Okay. So इसको कर देते हैं into 1.5, which is what, 120.
ओके अब हमें पता चल गया है दैट द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज गोइंग टू बी 120. ट्रेपीजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? It's 1/2 into sum of parallel sides into height. Yes, 1/2 times height times sum of parallel sides. So 120 equals to half times what's the height of the trapezium? That would be 6. Yes, that would be 6. The distance between these two lines, that is 6 units. So half times 6 times, what's the length of the bottom parallel sides, A to B? That's 10. 10. And the length of the upper parallel side वो हमें नहीं पता क्योंकि हमें दूसरा x नहीं पता तो हम उसको t कह देते हैं. Let's call it t or whatever. क्योंकि x मैंने already लिया हुआ है so I'm not going to use x. अब t की value मुझे निकाल दो. What is the length of the upper parallel sides? मिस ये t की वैल्यू में से कितना निकलेगी? हमें f का x ये कोऑर्डिनेट 2 the उधर distance. जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 120 से फिर अच्छा जो अच्छा आएगा उसको 10 से माइनस कर लो इस तरह आ जाएगी ना फ्रॉम दिस फॉर्मूला. जी. This would be 120 is equals to 3 times 10 plus t. T gets divided, so we have 40 is equals to 10 plus t. So t is equals to 30. And then if the upper parallel side is 30 units, then what's going to be the x coordinate of f? मिस आप रिपीट कर सकती हैं, ये समझ नहीं आई. t निकल गया 30. Miss t is equal to 30 जी मिस. t 30 आ गया. अब ये वाली जो लेंथ है ना e से लेकर f तक ये 30 यूनिट्स है तो मूवमेंट यूज करके मुझे f का x कोऑर्डिनेट बता दो. इस मिस जो 31. पूरी e to f है वो 30 है तो therefore 23 होगी. कैसे? देखो e जो है वो -1 पे 31. Yes मिस अबू बकर is right. 31. 31 कैसे? e -1 है. -1 से आपने 30 यूनिट्स आगे जाना. -1 से 30. 29. Yes. It's going to be 29. So the x coordinate of f is -1 plus 30, which is 29. So the coordinates of f are 29, 7. ठीक है. क्वेश्चन 20 करते हैं. मिस ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब था. नहीं इतना मुश्किल नहीं था. नहीं था. मूवमेंट्स थी और मैक्सिमम इस क्वेश्चन में मूवमेंट्स थी और एक आध फॉर्मूला था. दैट इज इट. दो एरियाज के फॉर्मूलाज आने चाहिए तो मूवमेंट थी. ऑनेस्टली इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ओके. Question 20. The diagram shows the quadrilateral ABCD with vertices of ABC are given and these vertices are not given. Coordinates are not given. The angle ADC is 90. The lines BC and AD are extended to intersect at point X. Given that C is the midpoint of BX, find the coordinates of D. So first thing you needed to do was to find the coordinates of X और ये movement से होंगे या midpoint के formula से होंगे. 14 and 12. Sorry, 14 and 12. 14, 12. Okay, let's quickly check. ये गया 4 units आगे.
तो 10 से भी आपने 4 यूनिट्स आगे जाना था, जो कि आ गया 14, और -4 से 8 यूनिट्स आप गए, तो 4 से 8 यूनिट्स आप जाके 12 आ गया। ठीक है, सो x coordinates of x are 14, 12. All right, from movement. Okay, next we need the coordinates of d. So now you can find the length of the equation of this line ax. Slope of ax would be y2 minus y1 1/3 over x2 minus x1 करके देख लेते हैं, 6 over 14, 15, 17, 18, 1/3, right? Okay, so the equation of this line ax would be point slope form y minus 6 is equals to 1/3 x minus 4, which is +4. So if I rearrange it, I'm getting 3y minus 18 is equals to x plus 4. So 3y minus x is equals to 22. ये आया था रैन? जी बस मेरा यही आया है 3y - 6 पहली इक्वेशन यही है। ठीक है, okay. Now we need the equation of DC. And once we have equation of DC, we can solve these two equations simultaneously and find the coordinates of D. Wait, shouldn't we find the equation of bx? बस मैंने भी bx की निकाली हुई है। bx और ax का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D तो नहीं है, हमें तो चाहिए D की वैल्यू, तो उसके लिए तो बस DC इसकी वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो गया। देखो ना, और bx का तो स्लोप पता चल जाएगा, इक्वेशन भी पता चल जाएगी, बट हमें उससे क्या मिलेगा? उससे कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें तो D चाहिए। So you need the slope of DC, which is going to be the negative reciprocal of the pink line, which was 1/3. So this is going to be -3. So you already know the slope of DC. Now I'm going to use point slope form. There's a point 10, 4 on this line DC. So y minus 4 equals -3, bracket x minus 10. So y minus 4 equals -3x plus 30. Y is equals to -3x plus 34. So this is going to be the second equation for DC. And now you solve these two equations simultaneously and tell me what do you get for coordinates of D. Solve these two simultaneously. Y की जगह लिख लो -3x plus 34. मुझे प्लीज एक दफा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं आपका ग्रेडियंट ऑफ डीसी कैसे निकला है? पिंक लाइन और येलो लाइन परपेंडिकुलर है। पिंक जी, लाइन का आपको 1/3 पता था, तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया -। ठीक है, इस वजह से आई हैव अ क्वेश्चन। बोलो। हम लोग इस तरह अगर बी सी और सी डी यूज करते, फॉर एग्जांपल अगर हम इक्वेशन ऑफ बी सी निकाल के इक्वेशन ऑफ डी सी निकाल लेते तो वो दैट हैव वर्क टू। इक्वेशन ऑफ डीसी कैसे निकाले? इस बी एक्स यूज करके या बी सी यूज मसला करके। ये है कि bx और dc परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो ग्रीन लाइन, अगर आप ग्रीन लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो तो एक सेकंड में चेंज द मार्कर। ओके, ग्रीन और येलो लाइंस परपेंडिकुलर नहीं है, पिंक और येलो लाइन परपेंडिकुलर है। हाँ, और अगर आप ग्रीन से येलो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रीन की स्लोप से येलो का स्लोप नहीं आ सकता, बिकॉज दे डोंट हैव अ परपेंडिकुलर रिलेशनशिप। Pink and yellow are मुझे perpendicular. आप भी आंसर आ गया D के क्या coordinates आए? बस 8, 10 So let me check the answers. 8, 10 is correct. So you've solved it and you got 8, 10 for D. Solve these two. You got x is equals to 8 and y is equals to 10. So coordinates of D are 8, 10. अब second part तो इसका कर लेना चाहिए था आप दोनों को। एरिया कैसे निकालेंगे इस quadrilateral का? मैं सेकंड पार्ट इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वो हेंस था ना, देयरफॉर
अगर पार्ट 1 नहीं ठीक हुआ तो पार्ट 2 नहीं कर सकते। लेकिन आप आंसर्स देख के तो कर सकते थे ना, आंसर से देख लेते डी की वैल्यू। हाँ मिस, आपको एक्स तो आंसर नहीं चाहिए, आंसर एंड में गिवन होते हैं वर्कशीट्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ना आपने क्या करना है, टू पार्ट्स आर रिलेटेड and you're not able to do part one, so just you get the information you need from the answers and do the next part. ठीक है, ठीक दैट है इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइस। ये नहीं करना कि फर्स्ट नहीं हुआ तो अब हम सेकंड ट्राई नहीं करेंगे। अब सेकंड में क्या है, इस येलो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, और मैंने पॉलिनोमियल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है, पहले हाफ लिखना है, फिर मॉडुलस, और उसके बाद एनी वन कोऑर्डिनेट, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए, सो -4 6। अब अल्फाबेट या क्या नाम है, क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, मैं ए के बाद बी लिख रही हूँ, तो 6 -4, उसके बाद सी लिखना होगा 10 4, और फिर ऊपर डी 8 10, एंड देन यू रिपीट द फर्स्ट वन अगेन -4 6। Now we will be multiplying these first, finding their sum, and then we'll be multiplying these, finding their sums, and then we'll be subtracting both the results. So half modulus, first -4 times -4 is 16, plus 6 times 4 is 24, plus 10 times 10 is 100, plus 8 times 6 is 42. Sorry, 48. Okay, plus 6 times 6 is 36, then -4 times 4 is -40, then 4 times 8 is +32, and then -4 times 10 is -40. Okay, half, and the first bracket simplifies to 16 plus 24 plus 100 plus 48, 188. बीच में माइनस साइन करना था, मैंने प्लस लिखा, subtract these. And then 36 minus 40 plus 32 minus 40 is 18. -12 18 नहीं आ रहा, मिस 30, माइनस में आ रहा है मेरा। एक सेकेंड, 36 -40 plus 32 minus 40, ठीक है, -12। So 188 plus 12 हो गया 200, 200 का मॉडुलस 200 ही है, आंसर है should be 100, 100। 100 units square, which is correct. Okay, that brings us to the end of this chapter. अब थैंक ideally गॉड मिस। दोनों जी थोड़े रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो ना, तो आप क्या करो, आप इसके खुद ही टॉपिकल्स खरीद लो, या जो भी मार्केट में टॉपिकल्स मिलते हैं, और इस चैप्टर के टॉपिकल स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब नहीं करोगे तो ये जितना भी थोड़ा बहुत आता है वो भूलता जाएगा। एक सेकंड, लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस।